Good evening, everyone. So, today we welcome you to the third episode of Life Transformation Series by Sound of Infinity Band and Dr. Andrew Sharma. So, this series is, of course, all about life transformation. So, here I want to start it reading this quote. Life is what happens when you're busy making other plans, right? Exactly, it is that way. So, before we move further to start the conversation, I wanted to introduce both the people. Dr. Anju Sharma is an internationally recognized sound healer, and she has been exploring potential of Indian sonic and vibrational sciences, sciences and their scientific applications. So she generally uses all these mantras, sound, music to heal people. And she also have a band called Sound of Infinity, which is main purpose is to heal people through sound through her concerts. That's her aim in life to introduce her. Now, I would like to introduce Mr. Ali Akbar Memun, if I pronounced it right, hopefully. A young and dynamic business psychologist and with experience in HR, stress, coaching, and clinical issues, of course. A profession with diverse career history and experience of working in a variety of environments. As he told us about himself, he loves helping people and businesses reaching their fullest potential and overcome their self-imposed constraints and limiting beliefs. Like it's so true as per what our series is all about, right? So he likes introducing strategy and structure with a pragmatic approach in organizations and has delivered a range of organizational development interventions in the management area. So today we'll learn about his, how he transformed his life. And as our quote also suggests that life is always what you make it, and you have the power to make your life or break your life. So now I'll hand over it to Dr. Anju Sharma and introduce Dr. Ali Akbar. हेलो गुड इवनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग सो हियर आई कम डॉक्टर अंजू शर्मा ब्रिंगिंग यू द थर्ड एपिसोड ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज so first of all I would like to say a big thanks to each and everyone for viewing and giving such a love and support for Urvashi because Urvashi के feedback बहुत अच्छे आए हैं and you people are actually I am actually blessed and honored कि आप लोगों को उनका और उनसे कनेक्ट हुए आप और उनको उनको बोलना उनकी चीजें आप लोगों को इतनी पसंद आई आप लोगों ने सपोर्ट किया so here again with that motivation we are bringing someone who is very special in my life and at that time people used to call both of us Jay Viru, and he's my best friend. But more than a friend, he is a motivator, guider, and sometimes you believe that a doctor can't heal himself. You need every time, every person need a person कि भैया मुझे ये रास्ता मुझे तो पता है ये रास्ता ठीक है पर मुझे एक सपोर्ट चाहिए होती है उस रास्ते पे चलने के लिए सो आई बिलीव कि अली एक ऐसे इंसान है मेरी जिंदगी में और अली के साथ में बहुत सारी पढ़ाइयाँ भी करी हैं और बहुत सारी जर्नी भी करी है पर मैं एक चीज अली के बारे में बताना चाहती हूँ जितने अच्छे ये इंसान हैं उतने ही अच्छे ये बिजनेसमैन भी हैं और उतने ही अच्छे ये एक हस्बैंड हैं और एक फादर हैं और मोर ओवर क्योंकि मैं इनकी फैमिली को भी जानती हूँ उतने ही अच्छे ये सन इन लॉ भी हैं So, coming directly to Dr. Ali, thank you so much on the very short notice for accepting the invitation to sharing your journey. आज की तारीख में जिस अली डॉक्टर अली मैमून को लोग जानते हैं क्या उसकी जिंदगी में एक लाइफ टाइम पे एक ऐसा मोमेंट आया था जब अली की लाइफ में फेडेडनेस आ गई थी बिकॉज दिस जर्नी दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज अबाउट विजन तो हम जानते हैं ये विजन जो आज आया है जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आज एक विजनरी का काम कर रहे हैं क्या उनकी जिंदगी में वो फेडेडनेस आई थी क्या थी बहुत सारी बातें करेंगे अली के साथ में तो सबसे पहले अली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड over to you Ali so introduce yourself
थैंक यू डॉक्टर अंजू। यस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में की हुई हैं। जैसे उन्होंने बताया, आई एम डॉक्टर अली अकबर मेमून। आई वाज बोर्न इन कोलकाता, ब्रॉट अप इन चेन्नई। आई स्टडीड इन लंदन एंड करंटली आई reside and live in Nagpur. I'm happily married with 2 kids, both boys, say about 8 years and 6 years old. Uh, I am a businessman, I am a health coach, I am an investor, and there are multiple things which I do. One of the best things जो आपने creative देखा हो उसमें एक cycling का photo है. So I really like that photo जब वो पहली बार लिया गया था और बहुत टाइम बाद किसी ने उस फोटो को ये क्रिएटिव में डाला हुआ है, saying me that this is showing who you really are. सो साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा रही है, ऐसे वक्तों में भी रही है जब आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग रियली डिफ़िकल्ट इन माई लाइफ। ओके, तो आई बिलीव साइकिल एक ऐसा स्पोर्ट है जो लोग बहुत ज्यादा एटलीस्ट इंडिया में अभी नहीं इतना ज्यादा ट्रेंड में है। कुछ लोग करते हैं साइकिलिंग, बट इतना नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में है। बट साइकिलिंग, व्हाट आई बिलीव, साइकिलिंग मेक्स यू हेल्दी। एंड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जो आप जिम में जाके करते हैं, अगर आप वो साइकिलिंग करते हैं तो होती है। बट एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो साइकिल का होता है वो ये है कि साइकिल 2 पहियों पे चलती है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी 2 पहियों पे चलती है। सो कमिंग डायरेक्टली टू द कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्टिंग द एपिसोड, अली, जब से ये क्रिएटिव गया है इन द सोशल मीडिया, सो पीपल वर आस्किंग 2 क्वेश्चंस commonly. Okay, so the first question is fadedness. So fadedness, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा fadedness क्यों बोला, मतलब this person is a health coach. Okay, guys, he is a health coach and he is a businessman and plus he is a psychologist. So fadedness मतलब क्या? So I would like to request you to put some light on this word, why fadedness and why this journey starts from fadedness. फेडेडनेस इसलिए बिकॉज एक समय ऐसे आया जब मेरी ज़िंदगी में एक अंधेरा आ गया था। इट वॉज फ्यू ईयर्स बैक जब ऐसा डिटेक्ट हुआ था कि मुझे ग्लोकोमा है। Okay. अगर आप लोग को पता होगा कि ग्लोकोमा एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है जहाँ पे आपका विजन धीरे धीरे करके completely lost हो जाता है, and that vision cannot be brought back as per conventional medicine. So fadedness, जो धुंधलापन हम बोलते हैं, जो ज़िंदगी में धुंधलाहट आने लग जाती है, वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। और अंजलि ने, डॉक्टर अंजू शर्मा ने जैसे बहुत क्लियरली बताया कि जैसे 2 पहिए होते हैं आपकी साइकिल में, वैसे ही 2 पहिए होते हैं आपकी ये वाली साइकिल में। वो जो साइकिल मैं चलाता था वो मुझे अपने रास्ते में आगे लेके जा रही थी, और ये भी जो साइकिल है वो भी मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जा रही थी। सो फेडेडनेस कम्स फ्रॉम देयर, अ ईयर इन माई लाइफ जहाँ पे मुझे एक तरीके से शॉक मिला था और एक तरीके से सरप्राइज हो गया था कि हाउ ऑन अर्थ वाज दैट पॉसिबल, बिकॉज ना मेरी फैमिली हिस्ट्री है, ना मेरी एज है, और बाकी जो भी टिक मार्क्स रहते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में कि अ पर्सन हैज़ ग्लोकोमा, वो नहीं था। सो डॉक्टर्स वेर सरप्राइज्ड, वो मुझे देख के अपना मुंह ऐसा खुला रख देते थे, क्या, नॉट पॉसिबल। दे यूज टू गेट द रिपोर्ट्स चेक ट्वाइस थ्राइस, मुझे 2-2 3-3 दिन में 5 बार बुलाया जाता था जस्ट टू चेक माई प्रेशर, ऑक्यूलर प्रेशर जो हम बोलते हैं, जो बढ़ जाता है जिसके कारण ऑप्टिक फाइबर नर्व्स जो होती हैं उस पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ऑप्टिक फाइबर नर्व अगर हेल्थी रही तो अपना विजन बहुत हेल्थी रहता है। एट प्रेजेंट आई डोंट नो वेयर माई विजन इज, आई कैन सी क्लियरली, एवरीथिंग इज फाइन। फेड हुआ कि नहीं आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आई एम ऑन माई जर्नी टू क्लैरिटी।
Absolutely, very beautifully explained by Dr. Ali. So, Ali, glaucoma. So the word itself says lot, a lot. Okay. So जब आपको पता लगा कि आपको ग्लूकोमा है, ओके, जहां पर आपका विजन कभी भी जा सकता है, कभी भी, मतलब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा विजन के साथ में वो नहीं पता है। तो उस टाइम पे पहला पहला मेरा सवाल है कि आपको ये कब पता लगा था कि आपको ग्लूकोमा है? ओके, विजन धीरे धीरे करके जाता है। ओके, सो बड़ा पेरिफेरल विजन से टनल विजन हो जाता है धीरे धीरे। नाउ इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग के यूजुअली आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई टेक केयर ऑफ माई इन लॉज जो यहाँ पर है। मेरे पेरेंट्स जब नागपुर में आते हैं, सो आई गेट देयर हेल्थ चेकअप डन। यूजुअली दैट डजंट हैपन इन द सिटी विच दे आर लिविंग इन। सो एज यूजुअल जब वो आए थे एक बार, तो मैं उनको लेके डॉक्टर के पास गया था, सो दैट दे गेट देयर आईज चेक्ड एंड एवरीथिंग चेक। एंड उन्होंने बोला कि तुम भी तुम्हारा चेकअप करवा लो। जैसे मैंने चेकअप करवाया, जो प्रेशर डॉक्टर ने देखा तो वो एकदम से शॉक हो गए थे। एंड ही डिडंट से मी एनीथिंग दैट टाइम, ही सेड प्लीज कम अगेन टुमारो। आई वेंट द नेक्स्ट डे, ही कॉल मी 5 डिफरेंट टाइम्स एंड देन ही सेड कि आपका प्रेशर हाई है और इसके कारण ये ऐसा हो सकता है, ग्लोकोमा। उसके बाद मैंने बहुत सारी टेस्ट करवाई गई। आफ्टर डूइंग द टेस्ट, जहाँ पे सब दिख रहा था कि हाँ ऐसा डैमेजेस शुरू हो गए हैं, इश्यूज दिखने लग गए हैं, स्टिल ही वाज लाइक कि नहीं, आप 1 महीने ड्रॉप्स कंटिन्यू कीजिए, पुट द ड्रॉप्स 3 times a day, eat healthy food and be positive and let's see after 1 month's time कि क्या होता है। बट स्टिल कभी कभी ह्यूमन है हम लोग, ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, हम 2, 3, 10 डॉक्टर्स को जाके मिलते हैं टू गेट देयर एडवाइसेस। दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू। सो मैं इतने डॉक्टर्स के पास तो नहीं गया था, मैंने एक स्पेशलिस्ट जो ग्लोकोमा में थे उनके पास गया ताकि आई कुड गेट द द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल प्रोसेस अगेन। So ग्लूकोमा itself says, like हम जब ग्लूकोमा वर्ड पढ़ते हैं तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, so I normally break the terms. So ग्लूकोमा में से ग्लू निकलता है, ग्लूकोमा में से मा निकलता है, ग्लूकोमा में से कोमा निकलता है। So ये 3 वर्ड्स मोटे मोटे हैं, और भी वर्ड्स निकलते हैं, बट ये 3 वर्ड्स ग्लू, कोमा, माँ, ये सब निकल रहे हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी क्या इन 3 चीजों में अटक गई थी? कुछ ऐसा हुआ था? यस, मैं ये भी बोल सकता हूँ, अटक भी गई थी और फंसी भी हुई थी। कोमा बोल सकते हैं। यूजुअली कोमा हम उनको बोलते हैं जो कम्प्लीटली ये हो जाते हैं, दे कैन हियर यू, फील यू, बट दे कांट मूव देयर बॉडी। सो कोमा सिर्फ वैसे नहीं होता, कोमा एक नॉर्मल इंसान को भी होता है जब आप एक शॉक में चले जाते हो, जब आप फ्रीज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पे आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो बचपन में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे आई हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक, आई हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ फ्रीज, जहाँ पे कम्प्लीटली सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो किस कारण हुआ। सो वहाँ पे कोमा आता है। ग्लू और माँ को अगर मैं बोलता हूँ तो यूजुअली एज बच्चे की तरह अगर हम लेते हैं तो हर बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ रहता है, ग्लू की तरह, जो गम बोलते हैं हम। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से सुना हुआ है कि बचपन में कहीं जब हम बाहर गए थे तो मैं गुम गया था कहीं पे। इफ आई हैव टू से कितने साल का था, मे बी 3 या 4 साल की उम्र में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे मैं गुम गया था। सो उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि माँ से दूर होना, माँ से दूर होकर एक कोमा में जाना। और जब एग्जैक्टली ये चीज़ डिटेक्ट हुई भी थी तब भी कुछ चीज़ हुई थी जहाँ पे फॉर सम टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स इन माई लाइफ देयर वर प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स विच वर देयर, बिजनेस को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उस टाइम भी हम बोल सकते हैं कि इंसान एक तरीके से कोमा में चला गया है, मे बी नॉट फिजिकली बट येस मे बी इमोशनली। Beautifully explained by Dr. Ali.
तो जैसे अली ने एक बात बोली है कि कोमा सिर्फ वो नहीं होता जो हम फिजिकल लेवल पे देखते हैं, अ पर्सन इज लाइंग ऑन अ बेड एंड कुछ भी मूवमेंट नहीं है, बट ऑल्सो सबकॉन्शियसली जब हमारे सेल फ्रीज्ड हो जाते हैं, जब हमारे सेल्स कहीं हम करना चाहते हैं बट सेल्स फ्रीज्ड है, तो वो भी कोमा वाली स्टेज होती है, तो उसको हम फ्रीज्ड कंडीशन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में फाइट कंडीशन भी होती है, हमारे पास में फ्लाइंग कंडीशन भी होती है, बट क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ऐसी है तो वो ये फ्रीज हो गए थे। तो अली, जब आप फ्रीज हो गए थे उस टाइम पे बचपन में, जब आप 3 साल के थे, कितनी देर के लिए आप अपनी मम्मी से, पेरेंट्स से अलग हुए थे? आई वेरी वेगली रिमेम्बर, बट हो सकता है मे बी समवेयर अराउंड 15 to 40 minutes, ऐसा कुछ। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा था कि अभी मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं मिलने वाले हैं, अभी मैं खो गया हूँ, मैं गुम हो गया हूँ, मैं उन लोगों को कभी देख नहीं पाऊंगा? मे बी एज अ बच्चे की तरह अगर पूछ रहे हो तो हो सकता है, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है वो उम्र, वो एज का। अगर मैं उस सिचुएशन में भी जाता हूँ तो आई एम ब्लैंक। ओके, क्योंकि अली की इस बात पे मेरे को एक बात याद आई है। मैं जब आई गेस 2 या 2.5 साल की थी, एंड दिल्ली के अंदर ही किसी रिलेटिव की शादी में मैं गई थी, और क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद थे और मैं गुलाब जामुन खाती जा रही थी, और मेरे सारे पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव सब लोग निकल गए और मैं स्टिल गुलाब जामुन खा रही हूँ। बाद में लोगों को पता लगा कि ये बेटी किसकी है, एंड आई वाज सो स्मॉल, और मैं स्टिल खाती जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं था मम्मी पापा और सब लोग किधर गए थे। तो दैट वाज द थिंग आई आस्क यू कि क्या फीलिंग था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं लगा था कि मैं गुम भी गई हूँ। सो कमिंग ऑन दैट नोट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम ये छोटी छोटी सी इंसिडेंट होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर में, हम इनको इम्पोर्टेंस कभी नहीं देते हैं, और लाइफ चलती जाती है, चलती जाती चलती है, रहती चलती है। बिल्कुल। पर जब आपको ये चीज पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे, जैसे आपने बताया कि 10 लोग सुनते हैं तो 10 लोगों का एडवाइस आता है, पर कोई सोसाइटी का प्रेशर, कुछ ऐसा लगा था आपको कि मैं प्रेशर में आ रहा हूँ, मतलब इतनी लोग क्यों एडवाइस दे रहे हैं? और उस टाइम पे आप खुद एक आप हेल्थ कोच थे, मतलब अभी भी आप हेल्थ कोच है, बट उस टाइम पे एक माइंड में आया था कि मैं दुनिया को समझाता हूँ, अभी दुनिया मुझे समझा रही है, मुझे बता रही है ये करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, जो कि सारी चीजें आपको पता है। तो उस टाइम पे प्रेशर फील हुआ था दिमाग पे? यस, बेसिकली प्रेशर डेफिनेटली फील होता है, बिकॉज एक जगह पे आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो ये चीज़ सुन के फिर से सुन हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आपके साथ या ऐसा क्यों हुआ। फिजिकली यू आर कम्प्लीटली एज ए एग्जॉस्ट फील कर रहा था मैं। आई वॉज मे बी समटाइम्स इवन फीलिंग पेन इन माई बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। जब अगर फिजिकल लेवल की बात करते हैं, जब इमोशनली और मेंटल लेवल की बात करते हैं तो इमोशंस में कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, अंधेरा दिखता था, लाइक जस्ट देयर इज, मतलब आप थिएटर में हो लेकिन वहाँ पे कोई मूवी चल नहीं रही है, कम्प्लीटली डार्क है, देयर इज ब्लाइंडनेस। एंड बीइंग अ म्यूजिकल पर्सन, मेरे दिमाग में सब जितने भी सैड मूवीज के सॉन्ग्स थे वो चल रहे थे अपने आप। एंड आई was avoiding to hear people and I used to listen a lot of music. अभी म्यूजिक भी जो अपने यूजुअल प्लेलिस्ट होते वो बजते थे, बट कोइंसिडेंटली और इंसिडेंटली उसमें से वही म्यूजिक बजते थे जो यूजुअली आपको सैडनेस की तरफ ले जाता है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, जो आपको ये बताता है कि बी इन योर ओन स्पेस। जो हम बोलते हैं सोसाइटी का प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर था। यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर रिलेटिव्स, अक्वेंटेंसेस, कोलीग्स। जब सबको एक आग की तरह ये मैसेज मिलता है तो सब अपने तरीके से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एडवाइस करते कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं हु फील वेरी सॉरी अबाउट इट, हु फील कि अब क्या होगा, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, ये बहुत जवान है, ये बड़ा बेटा है फैमिली का, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कमिंग इन माइंड। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता था,
पर धीरे धीरे हम्म जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मे बी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या चल रहा था। So, Ali, I can like completely understand कि इंसान के लिए दो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इमेजिन करके हम लोग देखें कि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी आंखें बंद करें और लाइट चली जाए तो विजनलेस इंसान कुछ भी नहीं है। बट ऑन दैट नोट आई वांटेड टू आस्क यू, ये सारी चीजें जब चल रही थी और जैसे कि बिकॉज आप एक हेल्थ कोच हैं, तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ डेफिनेटली आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में हुआ होगा कि जिसने आपको बार बार ट्रिगर किया है और जिसकी वजह से ऐसा कुछ, मतलब लोगों ने भी इतना बोला आपसे, और आप एक हेल्थ कोच हैं तो आपको ये चीज लगा कि भैया अभी तो मुझे पता है ये चीजें, एंड व्हाई यू पीपल आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो कभी ऐसा लगा था आपको कि कोई ऐसा इंसिडेंट कि ये बहुत ज्यादा ट्रॉमा बहुत हिट कर रहा है मुझे और आपने लोगों से बात करनी बंद कर दी हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने लोगों से बात करना तो बंद नहीं किया था। मैं बीइंग अ हेल्थ कोच, जो हमारी एक अच्छी क्वालिटी होती है, बीइंग एन एक्टिव लिसनर, जो हम सुनते रहते हैं, सबकी बात सुनते रहते हैं, उसको एक्नॉलेज करते रहते हैं, वो करता था मैं। बट साथ साथ में ये भी सोचता था मैं कि ये चीज़ क्यों हुई मुझे और किस कारण हो सकती है। अब कन्वेंशनल मेडिसिन आपको बहुत सारी रीजंस देती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग एन ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट या एक हेल्थ कोच, मैं ये भी सोच रहा था कि किस कारण ही ऐसे हो सकता है। मुझे बहुत वेगली याद है कि जब 8 साल का, या मे बी नॉट नॉट 8 ईयर्स, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में जब था, तो मुझे चश्मे लगे थे। लेकिन मैंने शायद चश्मे, जो यूजुअली बच्चे रहते हैं हम पहनते नहीं हैं, वी आर फिजिटी विद आवर स्टफ्स, वी ब्रेक आवर स्पेक्टिकल्स एंड एवरीथिंग, सो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। सो मे बी दैट वाज वन थिंग विच आई फेल्ट कि शायद उस टाइम पे अगर मैंने किया होता तो समथिंग और द अदर वुड हैपन। दूसरा, मेरे लिए विजन को लेके जो बात है, विजन देखने के लिए होती है फिजिकली, बट एज अ बिजनेस पर्सन और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली, जहाँ पे विजन जो है लाइफ का, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, लोगों का आपके ऊपर जो भरोसा है, एक बड़ा बेटा घर पे फैमिली में होने के कारण, वेयर यू हैव 4 अंकल्स एंड 5 आंटीज एंड यू आर द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो लोगों की बहुत सारी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस आप पे रहती है कि बड़ा होके बेटा क्या करेगा। तो एक ट्रॉमा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी दैट व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री, मुझे मेरा विजन कंप्लीट नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लॉस्ट समवेयर, आई वॉज स्टिल नॉट ऑन माई वे, या जो जर्नी मैंने सोची थी जहाँ पे ले जाऊंगा मैं अपने आप को, मैं वहाँ नहीं था। तो दैट डे मे बी द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉमा वॉज नॉट हाई, बट इंटरनली मैं टूट गया था एकदम। हम बोलते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी में इंसान चित्र बितर हो जाता है, वैसा हो गया था मेरे साथ में। सो क्या दैट आई मतलब कैन ऐसा, से। या सो क्या ऐसा कुछ था कि फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर था, बिकॉज यू वर द मतलब एल्डर थे ना आप अपनी फैमिली में सारों में, तो ऐसा फैमिली की तरफ से कोई प्रेशराइज कि नहीं यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेन certain goal, you have to be this? Because I have seen lot of parents, I have talked to lot of parents that कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा एंड ऑल दैट, पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल था आपके घर में जो आपको लगता नहीं, था कि ये बर्डन की वजह से मैं वो चीज नहीं अटेंड कर पाया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं था। आई डिड नॉट हैव प्रेशर फ्रॉम माई फैमिली और माई पेरेंट्स, बट जो अपना खुद का एक विजन रहता है, खुद का एक एम्बिशन रहता है, सीइंग द सिचुएशन ऑफ योर फैमिली। सो कभी कभी ये भी होता है ना कि हम अपना टारगेट खुद सेट करते हैं, अपने गोल्स खुद बनाते हैं, अपना एक विजन पॉइंट खुद ड्रॉ करते हैं, खुद डिजायर करते हैं। सो वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, वो चीज़ को मैं नहीं देख रहा था। जहाँ पे आपने ज़िंदगी के 5 साल किसी कोर्स को, किसी ग्रेजुएशन में दिए हुए हैं, एंड उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, रिडेंडेंसीज चल रही है, रिसेशन चल रहा है, तो एट दैट मोमेंट इन टाइम ये शायद मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स के साथ यही चीज़ हुई होंगी, और मे बी आज
हो भी रही है. Exactly, because the condition we are facing right now is exactly similar to recession. I mean, लोगों Absolutely. की नौकरियां जा रही हैं, there is no money, and people are actually feeling visionless. उनको पता ही नहीं है where we are moving ahead. Yes. So on that note, we are coming to the next question. So इतना सब कुछ लाइफ में चल रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था. So ऐसा क्या मोमेंट आया लाइफ में व्हेन यू हैव डिसाइडेड इट्स इनफ, नाउ आई हैव टू टेक अ चार्ज ऑफ माय लाइफ एंड आई हैव टू टेक कमांड ऑफ माय प्रॉब्लम एंड नाउ आई हैव टू मूव अहेड, बहुत हो गया. वो कब ऐसा क्या हुआ था? एक इंटरनल कॉल रहता था हमेशा मेरे अंदर कि देयर इज अ पर्पस टू माय लाइफ. जब after graduation I was not able to achieve something, I did not stop. Somewhere or the other I pursued what I had to pursue. I made myself do many other certifications and courses, और बहुत सारे लोगों के अंडर में काम कर रहा था. वहाँ से I went to London, वहाँ पे हायर एजुकेशन किया. I did not stop there. वहाँ से आने के बाद यहाँ पर भी जो मैं कंटिन्यू कर रहा था. बट जब ग्लॉकोमा हुआ तो एक तरीके से पूरा, जैसे मैंने बोला कि दिस वाज अ सेकंड शॉक इन माय लाइफ कि ये क्या हो गया. आफ्टर एवरीथिंग इज बीन वर्किंग सो स्मूथली, सो ब्यूटिफुली, व्हाट हैज हैपेंड अगेन? वेयर इज माय विजन गॉन अगेन? एंड दैट टाइम for few days or maybe few weeks I was very low. At the end of the day I'm a human being. Emotions hote hain, though you are a health coach, though you are a psychologist, at the end of the day you are a human being, so you go through that periods of ups and down. So I was quiet, I was thinking of many things. Sometimes I used to talk negative, sometimes I was positive. But उस चीज़ में पॉजिटिविटी जब मैं सोच रहा था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि ओके फाइन, इफ माय विजन गोज ऑफ, मैं तब क्या करूँगा. सो आई प्लान, या सो मैंने प्लान किया कि आई विल लर्न ब्रेल. Okay. Music is something which I really love. So मैंने ये भी सोचा कि मैं रेडियो जॉकी का कोर्स करूँगा, ताकि अगर आंखें चली गई तो मे बी रेडियो में FM में जाके आई कैन बिकम अ रेडियो जॉकी. सो आई स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग वेज, अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में, सो व्हाट आर द वेज वेयर आई कैन कीप परफॉर्मिंग माई सेल्फ, रादर देन थिंकिंग कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. ये तो होना ही था, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू बी इन दैट विक्टिम फेस. विक्टिम फेज जो एक होता है वो आपको बहुत नीचे 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 आपको कंप्लीटली आपको अपने आप से नीचे ले जाता है. एंड व्हाट आई बिलीव, विक्टिम इंसान खुद को खुद बनाता है, और जब वो खुद बिलीव करने लग जाता है ना दैट आई एम विक्टिम, तो लोग उस पर टैग विक्टिम का लगा देते हैं. सो इफ यू पीपल हैव दैट करेज टू ब्रेक दैट टैग victim wala, so you have to stand, you have to fight for yourself. और उस टाइम पे being a movie buff, उस टाइम पे ये शायद मूवी आई थी जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, उनकी जो मूवी थी पहाड़ों का ये तोड़ने के लिए, या कहीं पे एक डायलॉग था कि don't keep waiting that God will do something for you, who knows, he is waiting for you to take an action. So that also really motivated me. Beautiful. मुझे ऐसा लगता है कि ना कभी कभी जब हम लाइफ में स्टक होते हैं ना, तो ये जो कोट्स हमें सडनली मिल जाते हैं ना, तो दे आर द मैसेजेस ऑफ यूनिवर्स जो हमें देते हैं, और वो शायद वो एक मोमेंट हमें चेंज करने के लिए, और हमें अवेकनिंग कहते हैं ना कि अवेकनिंग कैसे हो गई. तो पीपल नॉर्मल अवेकनिंग कैसे होगी? अवेकनिंग हमेशा हमेशा अंदर से होती है. वो शायद आप आज अली को सुन रहे हैं, शायद अली को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की होगी. तो अगर आप लोगों के घर में ऐसे लोग हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, या जिनको भी आंखों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम. हमें नहीं पता आप किसकी लाइफ में विजन दे दें. तो
अली, बीइंग वेरी यंग, आपने ये तक सोच लिया था कि अगर मेरी आंखें चली गई तो मैं ऑल्टरनेटिवली अब मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ के साथ में, तो आपने अपनी लाइफ, तो आई एम श्योर अली की फैमिली भी ये शो देख रही होगी, एंड सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरीके से उन लोगों ने आपका सपोर्ट किया और आपका सहारा उस टाइम पे बने. Heads off to them, because family support जो होता है वो बहुत ही important होता है, specifically ऐसे टाइम पे. बट अली को जहाँ मैं जानती हूँ, अली इज अ पर्सन जो अपनी चीजों को अंदर रखता है. सो इस शो के माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें ही शेयरिंग. सो आई एम श्योर फैमिली विल बी शॉक्ड टू नो these points also. So Ali, what all treatments and therapies during the whole process, जब आपको पता लगा था कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तब से अब तक क्या क्या आपने ट्रीटमेंट्स अपने लिए यूज किए, क्या थेरेपीज यूज करी, क्या क्या किया? मैंने एलोपैथी जो यूजुअल ड्रॉप्स मेरे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए वो चालू है मेरी. आई एम ऑल्सो डूइंग होम्योपैथी. फिर ऑन एंड ऑफ मैं कहीं पे ऑयल थेरेपी, एरोमा थेरेपी करवा लेता हूँ. ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत सारी चीज़ जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ वो भी चलते रहता है. So on that note, I would like to add that Ali is himself is EFT trainer, practitioner, because EFT is an emotional freedom technique where you can release the emotion which are blocked. So Ali बहुत अच्छे तरीके से करते हैं थेरेपी को, और एक्सेस बार कॉन्शियसनेस में भी अली काफी अच्छे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अली बहुत सारी और थेरेपीज में भी मास्टर हैं. तो अली, ये सारी चीजें तो मुझे पता है. व्हाट ब्रिंग्स यू इन म्यूजिक एंड साउंड? That was the main question which came. I told you ना, दो questions आए. So initially the first question वो था, and the second question was this: what brings you in music and sound? Because you are a business person, okay? जी. And also a health coach, psychologist. जी. So because this is something which works with a creative mind. So what was that calling, or what brings you in music and sound? एक यूजुअल बिजनेसमैन का जो डे रहता है क्वाइट ऑक्यूपाइड रहता है, फ्रॉम मॉर्निंग से अबाउट 8 AM 9 AM से लेके रात के 8-9 बजे तक, या उससे भी ज़्यादा, ओके, डिपेंडिंग ऑन द द बिजनेस यू आर इनटू. किसी को बहुत ज़्यादा समय रस्तों में रहना पड़ता है ऑन रोड, किसी को बहुत ज़्यादा समय साइट पे रहना पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहना पड़ता है. सो म्यूज़िक हैज़ बीन समथिंग विच हैज़ बीन हम जो बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस रिलीवर है, एंड यू फील गुड. सो जहाँ पर यूजुअली शाम में, इवनिंग्स में, या टाइम्स व्हेन आई एम फ्री, आई वुड लिसन टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक्स. सो वहाँ पे म्यूज़िक से इतना लगाव है कि जहाँ एक सॉन्ग भी अगर सुन लिया, एक पंक्ति भी अगर सुन ली, तो पूरा जो मूड है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. सो जब इमोशनली आप चेंज हो जाते हो तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब कुछ बदल जाता है. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इमोशनल हेल्थ. साउंड एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत सारे साउंड को हम अगर एक साथ में कैप्चर करें तो उसको म्यूज़िक बोलते हैं. सो म्यूज़िक is played with different instruments. Sound is played with certain instruments. So sound bowl healing जो हम बोलते हैं, वो मैंने पहली बार जब देखा था तो I was in a complete surprise mode, because मेरे सामने जो पेशेंट थे या जो क्लाइंट थे जिनका थेरेपी हो रहा है, आज वो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं. डॉक्टर अंजू शर्मा was right in front of me. It was a very funny note that this time me and Ali, we both were sitting across the table, but because hamesha we were on the same side and we were like addressing people. So this time I would say, Ali, that I'm taking your interview. I just wanted to share your information. Might be Yes. a lot of people. Yes, it was my, and
अली, सो मुझे बहुत अच्छे से याद है. आई वुड लाइक टू शेयर दिस इंसिडेंट विद योर परमिशन, अली. सो मेरा साउंड हीलिंग सेशन हो रहा था, एंड जो मुझे मोटा मोटा याद है, अली वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज आई वॉज स्क्रीमिंग, आई वॉज शाउटिंग, आई वॉज लाइक शाउटिंग एट माई एज. बिकॉज क्या होता है जब हम साउंड करते हैं और साउंड देते हैं, तो द मेन मोटिव ऑफ साउंड इज टू surrender yourself. And when you surrender yourself towards the sound, your body heals so fast. That's the main difference between human and animals. When we give sound to animals, they receive it very beautifully because इतना सब कुछ स्टोरी नहीं चल रहा होता है ना. तो जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती जाती है, जैसे सपोज इफ वी आर गिविंग साउंड टू 10-year-old kid, तो उसकी साउंड एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा जल्दी होती है. बट इफ यू आर गिविंग साउंड टू 40-50-year-old मैन, उसकी साउंड एक्सेप्टेंस उतनी ही उस लेवल की होगी, क्योंकि जितना जितना हम लाइफ का एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स उतने उतने स्ट्रांग होते जाते हैं. साउंड ब्रेक्स दैट बिलीफ सिस्टम, साउंड ब्रेक्स दैट पैटर्न. सो ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद में फिर अली आप अपने बारे में भी बताइए थोड़ा सा. सो मेरे सामने थी डॉक्टर अंजू शर्मा, जो अलग अलग तरीके से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनकी बॉडी मूवमेंट्स हो रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब सामने कोई ऐसी हॉरर मूवी तो नहीं चल रही है. बट दैट वाज द पावरफुल टेक्निक ऑफ बोल्स, टिबेटियन बोल्स जो हम बोलते हैं. उसके बाद जब वो बाहर वापस आए, इट टेक्स लिटिल टाइम फॉर द पर्सन टू कम आउट ऑफ इट. तो बहुत अलग दिख रहे थे. उनको मैंने ये भी पूछा था कि यार डू यू नो मी, डू यू रिमेंबर मी, मैं ये हूँ करके. तो थोड़े टाइम बाद, यूजुअली अपने स्पेस से बाहर आने के लिए टाइम लगता है, एंड देन शी वाज बैक टू नॉर्मल. उसके बाद जब मेरा टर्न आया, तो मुझे जो याद है मैं वो शेयर करूँगा. ये आपको डराने के लिए नहीं है, बट ये आपको बताने के लिए है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल रहता है जो शायद हमें पता नहीं रहता. बट साउंड एक ऐसी मोडालिटी है, साउंड बोल्स जो ऐसी मोडालिटी है जो अपने आप में से ये सब चीज़ें निकालती है. द फर्स्ट सेशन विच आई हैड, वहाँ पे आई वॉज स्पीकिंग इन तिब्बतियन लैंग्वेज. सो हॉल में जो रूम में सब ट्रेनिंग चल रही थी, जितने भी लोग थे वो सब डर गए थे कुछ मिनट्स के लिए कि हाउ कम अ पर्सन इज स्पीकिंग सम लैंग्वेज. वो लैंग्वेज उस टाइम पे पता नहीं थी, बट बाद में यूट्यूब से, गूगल से चेक करने के बाद पता चला कि दिस इज समथिंग टू डू विद तिब्बतियन लैंग्वेज. जब मैं सेकंड सेशन कर रहा था, तो आई वाज स्पीकिंग अरबिक. आई कैन रीड अरबिक, I can recite Arabic, but I cannot speak in Arabic language, just like Hindi, English, Gujarati, and other languages. And I'm so I was, I am the witness. I actually saw him speaking Arabic so beautifully and flawless. Like he's the home language Arabic है. इस तरीके से he was speaking. And मैं डर गई थी उसके बाद में इसके. थर्ड सेशन में ऐसा हुआ था that it was on my body, physical level पे था. So I was doing certain yoga asanas and certain postures जो मैं usually, if I am in my complete senses, I wouldn't be doing that, because मैं एक subconscious में था, because I was in completely एक hypnotic stage में था. I was doing certain poses which even today, if someone asks me to do, maybe there'll be a little difficulty in performing certain those postures. So I would it's not a hypnotic stage, rather than using that word, it's a trance stage, because somewhere we know that what is going around us. Yes. ऐसा नहीं होता सामने कि आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, but because you are so much into that zone कि आप वहां से नहीं आना चाहते. बट ऐसा नहीं होता है. हिप्नोसिस में आपको पता नहीं होता है. That's the difference, main difference between a trance stage and hypnosis. तो sound सबसे पहले hypnosis में लेके ही नहीं जाते. sound में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांस में लेके जाएंगे आपको, और ट्रांस में लेके जाने के बाद में चीजें हील होती हैं. बिकॉज क्या होता है, जब आप ट्रांस में जाते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेटल होने लग जाता है.
काम होने लग जाता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम होने लगता है ना, तब वो ब्यूटीफुली सेल जो वाइब्रेशंस, जो भी पर्टिकुलर वाइब्रेशन हम आपको दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जाती हैं। तो जब ये इनका थर्ड सेशन बॉडी लेवल पे हुआ था, तो इनकी बॉडी जो है नेक से ये 90 डिग्री पे इनके पैर खड़े थे, एंड वी वर लाइक, एवरीवन वाज शॉक्ड कि व्हाट, बिकॉज़ ही इज 6 फीट एंड इनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो बहुत ही ताजुब था। और जहाँ पे ये बोलते थे कि कभी-कभी इनको कमर में भी दर्द होता था। तो Yes. ये सब चीजों में इतनी ब्यूटीफुली इन्होंने वो बहुत सारे योगा आसन किए, इन्होंने चैंट किए थे उस मेडिटेशन, मतलब उस साउंड थेरेपी के ड्यूरिंग। एंड उसके बाद में आई गेस हम सबकी ही लाइफ बहुत ब्यूटीफुली रन हुई है। मतलब जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, वो शायद हम लोगों को पता लग गया है कि ये प्रॉब्लम है, अब इसको ये इस तरीके से सॉल्यूशन इसका ये हम लोग ढूंढेंगे। तो लोग बहुत बोलते हैं कि किसी एक्सपर्ट की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ज्योतिष गुरुओं की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर जिसकी जिंदगी में तकलीफ ना हो, जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। द ओनली पॉइंट इज उसको कितना अपनी प्रॉब्लम को पहचानना आता है, और जो अपनी प्रॉब्लम को पहचान जाता है वो उसको जीत लेता है। ऑन दैट नोट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so now as you know sound, and after that sound came into your life, and so now आप बच्चों के साथ में साउंड से काम कर रहे हैं, स्कूल्स में काम कर रहे हैं। so what is the major problem you are finding, while working with kids? Okay. One more thing which before I go on to kid, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बताना ज़रूरी है कि जितने भी बार साउंड सेशंस होने के बाद मैं अपना चश्मा निकाल के साइड में रख देता था, से फॉर 20-30 मिनट्स, बिकॉज आई कुड सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली। मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद आफ्टर उस स्पेस से बाहर आने के बाद फिर से मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ रही थी। बच्चों के साथ अभी फ़िलहाल इमोशनल वेलबींग करके प्रोग्राम्स मैंने स्पेशली टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे इनफैक्ट फैमिली के साथ भी आई डू साउंड बोल्स। तो व्हाट आई फाइंड इज़ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर ही रखते हैं। वी आर नॉट रेडी और वी आर नॉट विलिंग, या फिर हम डरते हैं कि हम वो चीज़ अगर सामने वाले को बताएंगे तो हमारे ऊपर जजमेंट किए जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे, एंड assumptions लिए जाएंगे। सो व्हेन यू आर इन साउंड सेशंस, all of those with the help of sound, because sound सिर्फ कानों से नहीं जाता है, आपके बॉडी के हर एक सेल के थ्रू अंदर जाता है, एंड वो अपने आप जो हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव हार्मनी है हमारी लाइफ में, वो कम्प्लीटली निकाल देता है। एंड जब ये बच्चों के साथ होता है तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दे चेंज एंड ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। या एग्जैक्टली, अली ने ये चीज बोली है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि साउंड, उन्होंने बोला कि साउंड सिर्फ हम कान से नहीं सुनते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साउंड हम स्किन से सुनते हैं। कानों से तो क्योंकि कान भी एक ऑर्गन है और स्किन भी एक ऑर्गन है, तो कान से हम सिर्फ 20 हर्ट्ज सुनते हैं, सिर्फ 20 हर्ट्ज। अगर इससे ज्यादा अगर आप सुनो तो आप अपने कान बंद कर लेते हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी ही है सुनने की। बट आप कान बंद कर लेते हो, बट स्टिल साउंड जो तेज है वो चलती जा रही है, पर वो तो आपकी बॉडी रिसीव कर रही है थ्रू योर स्किन, एंड स्किन की कैपेसिटी 20,000 हर्ट्ज सुनने की है, रिसीव करने की है। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पे भी आप, जिस भी जगह पर भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे साउंड आप सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी में नहीं जा रही है, तो वहां पर कान बंद करने से साउंड नहीं जा रही है, आपकी स्किन स्टिल रिसीव कर रही है। तो मेक श्योर कि आप क्या सुन रहे हैं और आप किस जगह पर हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि साउंड और म्यूजिक दोनों आपकी जिंदगी में आए, और जहाँ तक मतलब म्यूजिक ऑब्वियसली पहले से था आपके लाइफ में, और उसके बाद में साउंड ऐड हो गई।
तो पर्सनली आपकी जिंदगी में क्या उसने कुछ डिफरेंस लेकर आया? डेफिनेटली साउंड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. इनफैक्ट इफ़ आई हैव टू से आई स्टार्टेड or maybe we a group of friends partnered together and we started an investment company. So yeah, definitely something has happened after sound coming into my life. Okay, okay, okay. So on that note, I would like to add two more points about the sound because I don't know that this transformational journey is moving towards the sound. So what I felt, after doing sound, और ऐसा नहीं है sound सिर्फ एक बार ही होती है. So there is a difference between sound and the music. Okay, so music comes with vocals, lyrics, Mhm. okay, and sound come with the vibration, with more of powerful vibration. So this is the instrument. आप जब सुनते हो instrumental music सुनते हो ना तो आपको उसमें vibrations मिलती हैं. Mhm. जब आप वोकल सुनते हो या लिरिक्स सुनते हो तो आपका माइंड जैसे गाना गाया, कोई भी गाना गाया, तो वो जो वर्ड्स होते हैं आपका माइंड वर्ड्स की तरफ फोकस होता है, लिरिक्स की तरफ फोकस होता है. तो आपका जो एनर्जी है वो म्यूजिक यानी कि वर्ड्स में और जो उसके अंदर रिदम है यानी कि राग है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, दोनों की तरफ डाइवर्ट होता है. पर साउंड में सिर्फ एक साइड वन ट्रैक रहता है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ म्यूजिक एंड अ साउंड. तो मैं सिंपल एक टेक्निक आप लोगों को बताना चाहती हूँ. देखिए, साउंड के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हैं या नहीं, बट साउंड द मोमेंट हमारा बर्थ होता है ना, हम साउंड सुनते हैं. अब साउंड के लिए आप क्या करोगे? अपने घर में हो या अभी भी बैठे हुए हो ना, सिर्फ ये ताली भी अगर आप बजाओगे ना, ये क्लैप भी आप करोगे ना, तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है. साउंड प्रोड्यूस के साथ साथ वाइब्रेशंस दे रही है. और अगर आप क्लैप करते हो एटलीस्ट 2 मिनट्स तक, आप नोट करोगे वाइब्रेशन पूरे हैंड में ट्रैवल करती है. तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थेरेपी जिसके पास में कुछ भी नहीं है और आपको अपना मूड को स्विच करना है, जस्ट क्लैप. ठीक है. तो अली, आई नो देयर आर लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो एक क्वेश्चन आया है, can you give some simple tip or home remedy for eyes? Home remedies for eyes. Okay, that's from Palak Chaudhary. Right. Basically, आप क्या कर सकते हो? You can, to feel good about your eyes, जो itching होती है, जो स्किन में बर्निंग होती है, उसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ठंडे पानी में थोड़े बहुत रोज़ वाटर डाल के कॉटन डिप करके आई कीप देम ऑन माई आईज एवरी डे, ताकि वो इचिंग जो है वो कम हो जाए. एंड एट द सेम टाइम, इफ पॉसिबल, विथ आफ्टर कंसल्टिंग योर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, अगर आप हनी लगा सकते हो हल्का सा अपने आँखों में, फ्रेश हनी विदाउट एनीथिंग दैट इज बीन एडेड, that is also something which is really good. Absolutely. Before that, you have to know that आपको exactly problem क्या है आंखों की. Yes. ठीक है. तो अगर आपको जैसे अली बोला कि ग्लूकोमा है अली को, तो आपकी प्रॉब्लम आपकी स्टोरी बताती है. तो आपको क्या पता ये आप चीजें कर रहे हो और आप अपनी स्टोरी पे काम ही नहीं कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. साथ में जब हम फिजिकल कुछ अप्लाई करते हैं, उसके साथ में हमें अपने मेंटल यानी कि अपने दिमाग के लिए भी चीजें करनी है. Glaucoma itself says that somewhere at some moment of life a person is stuck, a person is freezed, something has happened related with the home. Okay. अभी अगर आपको मायोपिया है, so myopia itself says, break the term. Myopia says somebody very close to your heart has gone. It's far. So you have to understand what your problem says. Okay. तो अगर आपकी प्रॉब्लम ये चीजें बोल रही है, कुछ चीजें बोल रही है, try to sort out that first. And sorting out that first means you have to be very awareful, you have to be very alert what you are receiving. आपकी शरीर के अंदर जा क्या रहा है,
आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए, हम रोक नहीं सकते हैं जो भी कुछ हमारे शरीर में जा रहा है, पर हम अलर्टनेस दिखा सकते हैं, राइट अली? यस, एब्सोल्युटली। सो मायोपिया जो आपने बोला, उसको अगर अलग तरीके से हम ये भी देखते हैं तो मारो पिया, मारो पिया, मारो पिया, नो। सो हम यूजुअली एज अ हेल्थ कोच हम वर्ड्स को ऐसे तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि हम जान पाए कि आपकी ज़िंदगी में इमोशनली एग्जैक्टली क्या हो रहा है जिसके कारण आपको फिजिकली ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। So that is the main thing which we work on. What is your emotional state? What is your emotional condition? What are you exactly going in your life which is emotionally unhealthy? साउंड के लिए जो उन्होंने बात किया डॉक्टर अंजू शर्मा ने, बहुत सारे मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आफ्टर साउंड सेशंस जो स्कूल्स के टीचर्स और बच्चों के लिए जब मैं करता हूँ कि उसका जो इफेक्ट है, जो वाइब्रेशन जो बोलते हैं, एक बॉडी में हल्की सी झंझनाहट जो बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 48 आवर्स के लिए आपके बॉडी में रहते हैं। यू कैन फील दैट, बट दैट इज नॉट विथ म्यूजिक। म्यूजिक शब्दों में होता है, आप फील नहीं कर सकते हो, यू कैन सिंग इट, बट वाइब्रेशन जो है, साउंड जो है आपकी बॉडी में रहता है एंड यू कैन फील इट, से 48 आवर्स। और आपका सेशन अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा है तो कभी कभी 72 आवर्स तक भी वो फीलिंग्स होती है। मतलब जैसे आप ये टच करते हो तो आपकी बॉडी में कंप्लीट रिलैक्सेशन हो जाता है, you feel completely you are in a different place. This is the power of sound. Yeah. And उसपे I mean joining this more words, अगर आपने साउंड कभी भी किसी से भी लिया है और अगर वो साउंड बहुत पावरफुल है, देखिए साउंड में एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि either a person want or not, the vibrations goes, vibration travels. मुझे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, वो जाएगी ही जाएगी। So mostly, most of the time people don't like the vibrations, don't like the sounds, okay, कि आप क्या बजा रहे हो, क्यों प्ले कर रहे हो, बिकॉज वो हो सकता है उसी पर्टिकुलर सेल पे जाकर हिट कर रही है। तो होता क्या है, इसीलिए मैं नॉर्मली अपने साउंड सेशंस के बाद में बोल देती हूँ कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाइब्रेशन आपके शरीर में गई है, वाटर के साथ आपकी पूरी बॉडी में वो मिक्स हो जाती है, और जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, यानी कि जहां पर भी आपका सेल्स क्लोज्ड फॉर्म में होता है, उसको वो ब्रेक करती है, और यूरिनेशन प्रोसेस से या वॉमिट प्रोसेस से या लूज मोशन के थ्रू बॉडी वेंट आउट कर देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्वेट से भी करती है। सो कमिंग ऑन द फाइनल नोट, अली, what message you want to give to all those people, as we know you are a business person, okay, and apart from that you are a holistic you are a health coach, so business works with the logical mind, and this part of work works with the creative mind, so दोनों आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट होते हैं। तो आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, और कहीं ना कहीं, बिकॉज एक काम है होप का और बिलीफ का, और एक काम है पैसे का, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, द मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू से एवरीवन इज, हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं, पैसे के पीछे इतना हम दौड़ भाग करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, what we forget is ourselves, the time that we have to take for our own health, for our own self, for our own learning, जो मैं नहीं देखता हूँ। जब हम इमोशनली अनहेल्दी है तो हम फिज़िकली हेल्दी कैसे हो पाएंगे? हम फिज़िकली वो चीज़ जो हमारे टारगेट्स है, जो हमारे गोल्स है, विजन्स है, उसको हम अचीव कैसे कर पाएंगे? सो इमोशनली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे इमोशंस जो हैं उसको वेंट आउट करना, उसको क्लियर करना, उसको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अफेक्टिंग यू माई फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर फैमिली, योर किड्स, योर रिलेटिव्स एंड एवरीवन हु इज़ अराउंड यू। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं मेरी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज से, बाकी जो भी थेरेपीज से मैं काम कर रहा था, समवेयर आई वॉज नॉट अवेयर बट माई फादर वॉज गेटिंग वेल। मैं मेरे ऊपर काम कर रहा था दोस्तों,
I was working on myself, but somewhere or the other my father was also getting those energies and vibration. So most important thing is कि please दिन में 90 minutes आप अपने आप के लिए दीजिए, जिसमें आप उसको ब्रेक कीजिए कि मे बी 45 minutes I'm going to do self, for my body, something or the other, ताकि यहाँ पे जो emotions हैं उसको हम साइड में हटा सके। बाकी 45 मिनट्स डू समथिंग जो आप कभी भी या आज तक नहीं कर पा रहे। जब मैं और डॉक्टर अंजू शर्मा स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो जो सिचुएशन में आज हम हैं, कोविड के सिचुएशन में है, लॉकडाउन में सिचुएशन में है, जहाँ पे एक तरीके से अगर कोरोना को मैं ब्रेक करता हूँ तो आखिरी का शब्द होता है रोना। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव साइड से लेता हूँ तो इट इज़ करोना। द यूनिवर्स, द नेचर, एवरीथिंग इज टेलिंग यू प्लीज करोना। जो आप करना चाहते थे अभी तक, जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आप नहीं कर रहे थे, प्लीज करोना। इस लॉकडाउन में आई वॉज एबल टू रीड लॉट ऑफ बुक्स जो मैं नहीं पढ़ पा रहा था, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल एंड सब्जेक्ट बुक्स जो हम पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड ड्राइंग, आई स्टार्टेड पेंटिंग, आई स्टार्टेड gardening. So all of these things I really loved and what desired to do बचपन से या काफ़ी टाइम से, बट नहीं कर पा रहा था। तो इस टाइम पे I did that. So please make use of the time that the universe is giving you, rather than रोना, please करोना। The beautiful note, rather than Rona, please Karuna. So on that beautiful note, it was, pleasure, always pleasure talking to you. And this time, like, we did it very officially. And hopefully, ये session से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा. And guys, again, I wanted to share a lot of thank you, Sujata ji. Thank you, Sujata ma'am. तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट टू मार्केट एनीबॉडी, not to do promotion of anybody. This platform and this series is made on the concept and on the idea of, to promote how a person can heal himself. आपके पास में एक एलोपैथ चीज है, मेडिसिन है, और छोटी छोटी चीजों के लिए जहां पर आप खुद अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, वहां पे उनको मत खाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि लोग अपना दिमाग दिखाने के लिए दूसरे के पास में जाते हैं। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें कर रही हूँ। अपना दिमाग दिखाने दूसरों के पास में जाते हैं, पर आप मुझे एक बात बताइए, वो दिमाग आपका है, उस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ सबसे ज्यादा आपको पता है। तो सामने वाला कैसे बता सकता है कि उस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? थ्रू सम टेस्ट, थ्रू सम एनालिसिस, कि हाँ, थ्रू सम रिसर्चेस, थ्रू सम एक्सपीरियंस, उसके बिहाफ पे वो रिपोर्ट बनाता है, और उसके बिहाफ पे रिपोर्ट बनाने के बाद में आपके सामने हमने रख दिया कि ये आपको प्रॉब्लम है। बट एग्जैक्टली आप बताइए, अगर आप अवेयरफुल हैं, आपको पता है, rather than trusting some other person कि वो मुझे लिख के दे that I am suffering from this problem, if you can exactly आप अपने बारे में पता लगा सकते हो कि मैं इस प्रॉब्लम से सफर कर सकता हूँ, mark my words फ्रेंड्स, आप उस प्रॉब्लम से खुद अपने आप को इतनी जल्दी हील कर सकते हैं, बिकॉज अवेयरनेस इज द की वर्ड। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो आप दवाइयाँ खाइए, आप कोई भी ट्रीटमेंट कीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन दैट नोट, thank you so much, Dr. Ali Akbar, for coming and sharing such a beautiful information. And I'm sure, friends, please share it more to more in your groups, on your walls, on everywhere, wherever you want to share it, because we never know कि कब किसको कहाँ से क्या पॉइंट से मदद मिल जाए। On that note, I wanted to share आज का टिप। So आज का टिप is, हमारी बॉडी में सब कुछ वेंट आउट, जहां से भी होता है, वहां से वो वेंटिंग आउट जो चीजें होती हैं सब स्टिंक करती हैं।
either it's urination, it's sweat, it's vomit, or we could say it's your potty, your motion. Everything, whatever is coming out of your body is stinking. So there is like one part of your body वो आपके कंट्रोल में है कि वहां से स्टिंक ना आए, और वो पार्ट है सिर्फ आपका जबान, आपका मुंह, आपके वर्ड्स. अगर आपके मुंह से भी ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं जो दूसरे को हर्ट कर रहे हैं और उनमें बदबू आ रही है क्योंकि वो दूसरे के शरीर में जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अपने वर्ड्स को इस तरीके से बना लें कि वो एटलीस्ट स्टिंक ना करें, क्योंकि आई हैव टेकन अ चार्ज ऑफ माई लाइफ दैट यस, बाकी चीजों के ऊपर हमारा कोई कमांड नहीं है, बिकॉज दैट्स अ केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, बट मुंह का जबान का हमारे ऊपर कमांड है. हम अपने मुंह से वो शब्द निकालें जो दूसरे को हर्ट ना करें. कोशिश तो करके देख सकते हैं, मैंने किया है. सो मैंने ये कॉल लिया है, मैंने ये चैलेंज अपने आप को दिया है कि मैं ऐसे शब्द नहीं निकालूंगी जो स्टिंग करें. तो on that note, thank you so much, Ali, and hope to Thank see you, you in Dr. Anju, and thank you, Sounds of Infinity, and this series of life transformation. It's been a fantastic 1 hour. बहुत सारी बातें अब मेरे दिमाग में और चलने लगी, कुछ यादें वापस आ गई हैं. Thank you for that Yeah. lovely thing. Yeah. So thank you so much. And if you guys wants to join the free sound healing meditation, so links are given below on the screen, and we are conducting them free of cost. So because in this time, as we all say, Corona. So Corona says, don't row, don't rona, do No something. Rona, kuch karona. Kuch Corona. So yes, absolutely on that mark. Signing off, and thank you so much, and hopefully next week we're gonna meet some other personality with a different problem, with a different issue, and how that personality come over from his fears. So if Ali can work out his fadedness to the vision, तो आप भी कर सकते हैं. So on that note, thank you so much. Hope to see you next week, Friday. Thank you. Thank you.